लवलीन मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ। हाँ जी ये सर। प्ले होती है क्या? हाँ जी सर। ये स्क्रीन प्ले है आपको हाँ जी सर, विजिबल हो है? रही है। हाँ जी सर, ठीक है, विजिबल है। ओके सर। हेलो मीनाक्षी मैम, शैल वी स्टार्ट? डॉक्टर लवली सर को बोलिए एक बार मूव करके देख लेंगे। हाँ जी सर। हाँ हेलो सर, एक बार मूव करके देख लो, आपकी स्लाइड्स चेंज वगैरह हो रही है ना? थोड़ा टाइम लेता है सर, रिमूव करके देखिएगा। अगला अगला सारे हो। ये तो सब ये ठीक है सर। इसमें सबसे आसान है, सीधा प्ले हो जाता है, फाइल आ गई सीधी अपने नीचे। हाँ मैम, शुरू करें जी। हाँ जी सर, हो रही है जी। सर। आप स्क्रीन अपनी स्लाइड से मूव करके देख लो एक बार। हाँ, अभी मैं मूव करता हूँ, आप बताइएगा मुझे, जरा अपडेट करिएगा कि वो हाँ आपको जी विजिबल है। ओके सर। ये फर्स्ट स्लाइड जैसे रिसाइट जागरण मंत्र, हाँ ये जी विजिबल आपको। यस सर। ड्रिंक ल्यूक फॉर्म वाटर हाँ विजिबल जी है। सर, यस सर, विजिबल है। ये विजिबल है, वाइट टू कीप वाटर इन द कॉपर पॉट। हाँ जी जी हाँ जी सर। ठीक है मैम, करिए, शुरू ओके करिए सर। मैम। ओके सर। हेलो मीनाक्षी मैम, करें स्टार्ट? हाँ जी डॉक्टर लवली ठीक है। A very good morning to all of you. Myself, Dr. Lavleen MD Dravagunu, and I am working as an assistant professor in Srimati Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences, Hoshiarpur. I welcome you all on the third day of the webinar series Ayush Vibodhini session 2. First of all, I would like to thank our chairman sir, engineer Amarjit Singh Walia, respected principal ma'am Dr. Meenakshi Nath ma'am, and vice principal Dr. Ridu Sharma for their continuous support during the session of webinars. These webinars are not only a webinar series, but it will also join a new chapter in the history of college for initiating overall development and encouragement of students. Now, I congratulate our teaching faculty for such a great hard work. A special thanks to our response person from my side goes to Dr. Deepika Bhandari, Assistant Professor in the Department of Agatantra of our college for their special hard work and precious efforts to make this event successful. Now, I request our principal ma'am, Dr. Meenakshi Nath ma'am, to throw few words on today's session. Over to you, ma'am. Thank you Dr. Levy. A very warm good morning to all, and also welcome to all delegates present in this session of Ayush Vibodhini Series 2. Today's session is going to be a milestone session as our guest speaker, Dr. Naresh Bhargav, is a renowned dignity of his field.
His topic आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद सिद्धांतों की स्वीकार्यता. It is quite a relevant topic to be discussed. Ayurveda is a part and parcel of our daily routine, and we inherit these rituals by birth. They are in our blood, and I think that is why we don't understand their importance and also ignore the point from where they have originated. It is for sure that their origin was scientific at that time also, but in present scenario, there is again the need to prove these principles scientifically at modern parameters. This responsibility is solely on our new generation Ayurveda practitioners and learners. So today's topic will help in believing Ayurveda more strongly and more willingly. And I'm very much thankful to Dr. Bhargav for accepting our invitation to be our keynote speaker. And we are sure that in future also, we will be having knowledgeable sessions from you, sir. Thank you once again, Dr. Bhargav. Over to you, Dr. Loveleen. Now, thank you, ma'am. Now, I welcome our keynote speaker of the day, Dr. Naresh Bhargav, who is a person of gem. I have no words to elaborate your achievement, sir. Actually, sir, please forgive me if I skipped any of your achievement or anything in this my lecture. Dr. Bhargav had done their UG from Shri Baba Mastnath Ayurvedic College, Rohtak in 1996 and PG from MMM Government Ayurvedic College, Udaipur in 2000. He had published 81 articles in Ayurvedic periodicals and 12 research papers in international journals, delivered 106 lectures as response person in seminars, and 19 paper presentations in national seminars. He had also published 2 books which we all read in our BMS career, named Dravya Gun Adarsh. As I was your student, sir, I wholeheartedly welcome you once again to accept our invitation in such a short notice and giving us privilege to listen your views on the topic आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद के सिद्धांतों की स्वीकार्यता. Over to you, sir. धन्यवाद डॉक्टर लवलीन. डॉक्टर सरदार अमरजीत सिंह जी वालिया, चेयरमैन उर्मिला देवी आयुर्वेद कॉलेज. मैं आज से लगभग 20 वर्ष पहले सरदार साहब से मुखातिब हुआ था, जब उर्मिला देवी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हो रही थी, उसके इंस्पेक्शन के टाइम पर. तो एक नाता मेरा इस महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है. आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी नाथ जी, प्रिंसिपल उर्मिला देवी आयुर्वेद कॉलेज, डॉक्टर मृदु शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, and the coordinator of this national seminar who worked so hard to organize and to make this seminar happen, Dr. Loveleen, Dr. Deepika Bhandari ji. यद्यपि धन्यवाद अंत में ज्ञापित करते हैं, लेकिन आरंभ में ही धन्यवाद भी कह रहा हूं कि आपने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और मुझे आमंत्रित किया मुख्य वक्ता के रूप में. और विषय के बारे में जब चर्चा हुई तो ये जो विषय है काफी सरल विषय, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक विषय. और इस विषय पे 3 IITs में और लगभग 14 या 15 यूनिवर्सिटीज में लेक्चर डिलीवर कर चुका मैं. और सबसे अच्छा मुझे तब लगा जब IIT दिल्ली के अंदर मेरा लेक्चर हुआ और उस समय पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहाँ पर श्रोता के रूप में बैठे थे. मैं उनसे परिचित नहीं था और उन्होंने कहा कि ऐसी किसी एक लेक्चर की मैं चाहता हूँ, आवश्यकता है, हमारे विश्वविद्यालय में भी आप वहाँ पधार सकते हैं. बड़ा अच्छा लगा मुझे और वो लेक्चर पटियाला में भी हुआ. तो जो विषय है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद के सिद्धांतों की स्वीकार्यता. कोरोना काल के अंदर आयुर्वेद के सिद्धांतों की कुछ स्वीकार्यता ज़्यादा ही बढ़ गई और जो हमारे बंधु एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करने लग गए कि अकेले एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो पूरे विश्व को स्वस्थ रखने में और उनके स्वास्थ्य की रक्षा संरक्षण करने में असमर्थ है। कोरोना काल ने इस सत्य को उजागर किया है। परिवार में भी 7 चिकित्सक हैं, आयुर्वेद से मैं अकेला हूँ, बाकी सारे 6 एलोपैथी से हैं। परिवार में बड़ा खुले दिमाग से इस विषय पे चर्चा होती है। तो ऐसा स्वीकार करते हैं सभी एलोपैथी के चिकित्सक भी कि आयुर्वेद के जो विद्वान हैं वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, इसलिए लोगों में आयुर्वेद के सिद्धांतों की जानकारी नहीं, विज्ञता नहीं, और एक दूसरा सत्य ये कि आयुर्वेद के सिद्धांतों की ही पुनर्स्थापना करके आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उन पर अपना टैग लगाता जा रहा है। जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है FDC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स जो टीचिंग फैकल्टीज के, यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग फैकल्टी उनके बीच में जाना होता है, तो मैं उनसे उनके समक्ष जब विषय रखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उनको बताता हूँ कि मैं कुछ आपको बचपन की बातें याद दिलाने के लिए आया हूँ। वो सारी बातें आपसे करने आया हूँ कि जो आपको पता है, आप नानी से, दादी से सुनते आए हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया है क्या कि उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है और मॉडर्न मेडिसिन उसके बारे में क्या कहती है। हमारे स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर फील्ड में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इन विषयों के ऊपर गहनता से चिंतन करने का स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो अवसर गवा देते हैं, अपने टीचर से चर्चा नहीं करते, उन विषयों के ऊपर ना तो अध्ययन करते हैं ना चिंतन करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बिंदु, इस उम्मीद में कि आज श्रोतागण में अधिकांश स्टूडेंट्स होंगे और जब समाज के बीच में जाएंगे और इवन फैमिली के अंदर जब इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर देने में वो सक्षम होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपके समक्ष हूँ। तो 1 मिनट होल्ड करें, मैं बात में करता हूँ। ऐसी ही कुछ स्लाइड्स सिंपल सी मैंने आपके लिए बनाई हैं और आई एम श्योर कि आप बहुत कुछ गेन करके जाएंगे उन स्लाइड से और समाज में आयुर्वेद के सिद्धांतों को बहुत ही प्रभावी ढंग से आप रख पाएंगे। Am I audible, Dr. Lavleen? Yes, Yes, sir. Yes, sir. You are audible. फर्स्ट स्लाइड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दादी, नानी, माता, पिता सबने आज तक बचपन में हमारे को बचपन में इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं कि अर्ली टू राइज। कितना अर्ली? क्या 2 बजे उठ के बैठ जाएं, 3 बजे उठकर बैठ जाएं, 4 बजे? और जो पढ़ा लिखा समाज है उससे भी जब हम बात करते हैं तो ये बचपन में सबने सुना है कि अर्ली टू राइज, और एक शब्द साथ में और भी सुना है, ब्रह्म मुहूर्त। किसी से भी हम पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अच्छा होता है, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है, क्यों उठना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन क्या कहती है इसके बारे में, और ये ठीक भी है क्या कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, कुछ फायदा मिलता है क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। इस तरह के अनेक प्रश्न समाज के अंदर आते हैं। मॉडर्न मेडिसिन भी इस तथ्य को अब स्वीकार करती है। आयुर्वेद के लोग इसको अपने सिद्धांत के रूप में पॉपुलराइज नहीं कर पाए, ये कमी हमारी है।
हम इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बता सके समाज को, ये कमी हमारी है। और इवन आयुर्वेद के बच्चों से मैं कई बार पूछता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है, और नहीं बता पाते कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है। सूर्य उदय से एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट पहले और एक मुहूर्त बाद में, 96 मिनट का एक मुहूर्त। एक मिनट, सॉरी मैं बीच में, हाँ मुकेश जी कोई इमरजेंसी है? उनको बोलना कि लेक्चर चल रहा है, ठीक है। मैं 12 बजे फ्री हो जाऊंगा। हाँ क्षमा चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, तो बीच में कोई एक इमरजेंसी मीटिंग सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आया था, तो उसका संदेश देने के लिए ये आ गया बीच में, क्षमा चाहता हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि एक मुहूर्त पहले और एक मुहूर्त बाद में क्या होता है, उस समय क्यों उठना चाहिए? अगर पढ़े लिखे समाज में भी आप पूछोगे तो कुछ लोग क्या तर्क देंगे? जो पहला तर्क दिया जाता है वो कहेंगे उस समय ऑक्सीजन का लेवल हवा में ज्यादा होता है। अब उनसे पूछे कि जो एयर के कंपोनेंट्स हैं, जो जो गैसेस हैं इसके अंदर, वो तो फिक्स है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होता। फिर उनसे पूछो, दूसरा वो तर्क देते हैं कि उस टाइम पर हवा शुद्ध होती है, तो थोड़ा सा भी अगर मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है या सर्दियां आरंभ हो गई, तो जो वाटर ड्यूज हैं उसके कारण ड्यू के साथ में ही जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उस पे स्टिक कर जाते हैं, और जो हवा में ऊपर वाली लेयर के अंदर है वो तो बल्कि नीचे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। आप देखते होंगे फॉग, और फॉग के साथ कितना हाइड्रोकार्बन नीचे आ जाते हैं, और सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, आंखें जलने लग जाती है, नाक में जलन होती है, दम घुटने लगता है। तो उनसे पूछो कि भाई सुबह तो हवा भी शुद्ध नहीं है, फिर क्यों ऐसा? ये तो पता है कि अर्ली टू राइज दिस प्रिंसिपल इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन क्यों ये नहीं पता। मॉडर्न मेडिसिन भी इसके पीछे 2-3 कारण मानती है। नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ज्यादातर जो वेजिटेरियन होते हैं वो इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो परसेंटेज इंडिया में सबसे ज्यादा है वेजिटेरियंस की। उनके अंदर विटामिन डी का कोई ऐसा सोर्स नहीं है फूड के अंदर कि विटामिन डी उनके शरीर में चला जाए, क्योंकि वो एनिमल ओरिजिन वाले फूड के अंदर मिलता है विटामिन डी। और दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है सनलाइट। कौन सी सनलाइट? क्या दोपहर में 12 बजे उस सनलाइट के अंदर बैठ जाएं, क्या स्किन का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस फ्रीक्वेंसी की यानी जितनी ऊर्जा वाली जो सन रेज हमारे के शरीर को चाहिए कि लोअर लेयर ऑफ द स्किन में विटामिन डी की सिंथेसिस हो सके, उसके लिए जिस प्रकार की सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त में मैक्सिमम होती है। अब कई लोग पूछते हैं कि उस टाइम तो सूरज की किरणें होती ही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता। रिफ्रैक्टेड रेज, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। उससे प्रकाश नहीं हो रहा, लेकिन इट डजंट मीन कि वायुमंडल के अंदर वो तरंगे नहीं है, वो किरणें नहीं है। वो स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए पर्याप्त हैं जिससे कि विटामिन डी की सिंथेसिस हो सके। और जो सूर्योदय के बाद का एक मुहूर्त है वो श्रेष्ठतम है विटामिन डी की सिंथेसिस की दृष्टि से। दूसरा सबसे बड़ा लॉजिक जो मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है, सोने से नर्वस सिस्टम को अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आराम मिलता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है नर्वस सिस्टम। या अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो सोते हुए हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इतने की ही फंक्शनल होते हैं कि हम जिंदा रहें, लाइफ सस्टेन्ड रहे, इतना ही काम कर रहे होते हैं। रेस्टिंग फेज के बाद में पुनः ऑप्टिमम लेवल पर हमारे वाइटल ऑर्गन्स काम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम।
इसीलिए कहते हैं कि प्रातः काल उठकर अध्ययन करें। इवन जो साधु संत हैं वो अगर ध्यान वगैरह लगाते हैं तो उसी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जो राइटर्स हैं, इवन जो शायर वगैरह हैं, जो लेखक हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ इसीलिए मानते हैं कि रेस्टिंग फेज यानी कि स्लीप के बाद में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उसमें भी पर्टिकुलरली ब्रेन, वो उस टाइम पर ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहा होता है। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, जो बायोटॉक्सिन्स हैं, पूरे जो जागृत अवस्था के अंदर बॉडी के अंदर जितने बायोटॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं, एक कल्पना करिएगा एक व्हीकल का इंजन, और जब आप सर्विस करवाने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, कार्बन जमा हुआ है, वो साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, उसके कार्बोरेटर वगैरह सब कुछ साफ करना पड़ेगा। सेम वे बॉडी के अंदर, क्यों? क्योंकि बॉडी कवर्ड है बाहर से, इसलिए हमें वो बायोटॉक्सिन्स नजर नहीं आते। आप जो फर्स्ट यूरिन होता है देखा जागने के बाद में, पहला यूरिन आप देखिएगा, पैथोलॉजिकल जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें उसी यूरिन को मांगा जाता है एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज के लिए। और उस यूरिन में और जो दिन में जो यूरिन होता है, दोनों में अंतर होता है। रीजन कि पूरे दिन का जो एक्यूमुलेट, और दूसरा 8-10 घंटे जो रेस्टिंग फेज रहा उसके दौरान जो आपने यूरिन पास नहीं किया वो सारा का सारा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा है। और जो बायोटॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट हो रखे हैं, जो कि यूरिन और फीसिस के रूप में बॉडी से बाहर निकलते हैं, हम बॉडी से उसको क्लींजिंग करते हैं, वो सारे बायोटॉक्सिन्स बॉडी के अंदर से वॉश आउट करने के लिए द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैज टू डू हार्ड वर्क। और वो रेस्टिंग फेज के दौरान उन बायोटॉक्सिन्स की क्लींजिंग के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है। प्रातः काल उठने से इसका क्या संबंध है? प्रातः काल उठकर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय, उस टाइम पर, क्योंकि रेस्टिंग फेज से हम बाहर निकले हैं, वाइटल ऑर्गन्स की भी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है, वो क्लींजिंग इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ में आपके सामने आएगा। तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना, मॉडर्न मेडिसिन भी अब इस चीज को स्वीकार करती है कि हाँ वो यूजफुल है। अगर आपका इसके साथ साथ में कोई प्रश्न हो तो साथ साथ है नोट करते जाइएगा। विटामिन डी वाला काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी जुड़ी हुई होंगी। विटामिन डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स के लिए जरूरत है। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए विटामिन डी और भी ज्यादा अहमियत रखता है। रीजन बीइंग कि लैक्टेटिंग मदर के मिल्क के अंदर बहुत सारा कैल्शियम है, वो शरीर से बाहर जा रहा होता है। और ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी की जो कोख में बच्चा पल रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स में रिक्वायर्ड मिनरलाइजेशन के लिए जो कैल्शियम, आप सोच के देखिएगा एक बच्चा है, उसमें मैं कई लेक्चर्स में मदर से पूछता हूँ कि एक न्यूली बोर्न बेबी की बोन्स का कितना वेट मानते होंगे आप, तो वो कहते हैं कि जी अगर लगभग 30% ऑफ द टोटल बेबी वेट को भी माने तो बच्चे का 2.5 किलो वजन है, तो 30% जो बोन का वेट है उसके अंदर कितना कैल्शियम और फास्फोरस रिक्वायर्ड होगा। लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी जितना मर्जी कैल्शियम और फास्फोरस कंज्यूम कर ले, अगर विटामिन डी उसकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा या फूड के रूप में अगर वो इनटेक नहीं है तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और अगर जीआईटी में अब्जॉर्ब भी हो गया तो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स नहीं होता अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। फर्स्ट कंसेप्ट अर्ली टू राइज, और किस मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना। सेकंड स्लाइड, जागरण मंत्र, रिसाइटेशन ऑफ जागरण मंत्र। हम हाथ देखकर ऐसे सुबह उठकर आप बुजुर्गों को देखेंगे, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी,
क्या सच में जो उंगलियों की टिप्स है उनके आगे लक्ष्मी बसती है क्या? क्या इनको देखने से, इनको मत्थे पे लगाने से क्या लॉटरी निकल जाती है क्या? पंजाब में तो वैसे भी लॉटरी बहुत खेलते हैं लोग। या जो मैरिड फीमेल होती है, क्या ऐसा होता है क्या कि हाथों के दर्शन कर लिए, सास कहीं डायमंड वाली ज्वेलरी रख के भूल जाएगी या आपको अपना हार दे देगी? नो। जागरण मंत्र जो कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, लक्ष्मी पर्यायवाची शब्द है स्वास्थ्य का, सुंदरता का। श्री और लक्ष्मी ये स्वास्थ्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या इनके दर्शन करने से स्वास्थ्य बढ़ जाता है क्या? थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सामान्य भाषा का प्रयोग करूं, जिससे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेडिकल साइंस अभी इतनी नहीं पढ़ी, उनको भी ये समझ में आ सके और वो समाज में आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है उनको एक प्रभावी ढंग से रख सके। आपने देखा होगा बचपन में स्कूल में जाते थे और कई बार क्या होता था, किसी के स्वेटर को हाथ लगाया और बच्चे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, और कई बार ऐसा होता था स्वेटर में करंट सा लगता था और हम बड़ा झटका लगते ही हाथ को उठाया करते थे। क्यों होता था वो? ऐसा क्यों होता था? कई बार हम किसी दोस्त से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाते हुए झटका सा लगता है, करंट लगता है। कोई भी कंडक्शन हो रहा है, किसी भी तरंग के रूप में कोई भी गति है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लो, किस किस चीज का फ्लो हो रहा है? फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और ऐसे ही इम्पल्सिस का कंडक्शन हो रहा है नर्व्स के अंदर। और जहां एंडिंग्स होती है ना, वहां पर उस कंडक्शन को मैक्सिमम फील किया जा सकता है। तो बॉडी की जो टिप्स हैं, टिप्स में जो पैरों की उंगलियां हैं, वो अर्थ में कंडक्शन के माध्यम से उस चार्ज को आगे फ्लो पास ऑन कर रहा है, बट हाथों की एंडिंग्स में जो है वो आगे कहीं फ्लो नहीं हो पाता। जब भी किसी चीज को टच करेंगे, जैसे कई बार आप किसी धातु को हाथ लगाते हैं तो करंट सा लगता है, किसी से हाथ मिलाते हैं तो करंट सा लगता है, तो वो जो एंडिंग्स हैं उससे विपरीत जो आयंस हैं वो हमारी टिप्स के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। उन आयंस को पूरी बॉडी के ऊपर डिस्पर्स करना, एंड दैट इज यूजफुल। वो आयन जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दीज आर गुड फॉर हेल्थ। हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए वो अच्छा होता है। और इसीलिए वो जो जागरण मंत्र है वो एक भाव पैदा करने के लिए कि मैं स्वस्थ रहूं, तो हम मंत्र पढ़ते हैं और वही 48 सेकंड लगते हैं 3 बार उस मंत्र को 7 बार उस मंत्र को डिसाइड करने में, 7 बार उस मंत्र को बोलने में। और फिर क्या करते हैं हम? इस तरह हाथ रगड़ते हैं, इसलिए कि जो वो आयंस एक जगह पर एकत्रित है वो पूरे हथेली पे फैल जाए। और फिर हम मत्थे पे लगाते हैं, आईज पे लगाते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक है, और मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात को मानती है। और वो साथ में ये भी ऐड करते हैं कि कभी भी जब सोए हुए हों, हम अर्थ के पैरेलल सोते हैं बिस्तर के ऊपर, चाहे जमीन पे सोए चाहे बेड पे सोए। और जब हम एकदम से खड़े होते हैं, खड़े हो गए, तो थोड़ी सी देर एक फिजिक्स का नियम आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक पाइप है, उसके अंदर पानी है। क्या बिना किसी मोटर की मदद के पानी को उस पाइप में ऊपर वाले एंड तक लेके आ सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। शरीर के अंदर जो ब्लड है, मैं बैठा हूं, ब्लड पैरों में इकट्ठा हो रहा है, कोई मोटर भी नहीं है, वो ब्लड वापस कैसे आ रहा है? यहां तक तो समझ में आता है कि हार्ट ने पंप किया और पंप करने के कारण ब्लड ऊपर की तरफ भी चला गया और नीचे की तरफ भी चला गया। लेकिन जो नीचे की तरफ ब्लड चला गया वो वापस कैसे आ रहा है हार्ट की तरफ? एक व्यक्ति खड़ा है तो वो वापस कैसे आ रहा है? इस विषय पे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जो वाल्व्स होते हैं ब्लड वेसल के अंदर, उनका फंक्शन आप अच्छी तरह से जानते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। उन वाल्व्स को एक्टिवेट करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यंग एज के जो लोग हैं उनमें जो अगर सोकर भी व्यक्ति जागा है तो नर्वस सिस्टम बड़ा क्विकली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाता है और उसका पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है। आप देखिएगा छोटा बच्चा, बुजुर्ग जब सो के एकदम से उठता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं,
क्यों? क्योंकि जो टाइम गैप है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम को जितना चाहिए, सेंसरी नर्व्स मैसेज इम्पल्सिस भेजे और मोटर जो इम्पल्सिस है मसल्स तक पहुंचे, उसके लिए जो टाइम गैप है उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन भी ये बात मानती है कि जो लेटा हुआ व्यक्ति है वो सीधा एकदम से खड़ा ना हो। खास करके ध्यान दीजिएगा जिनका बीपी लो रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज और कोई भी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर का पेशेंट और लिवर फेलियर का पेशेंट, रीनल फेलियर का पेशेंट्स, वो व्यक्ति एकदम से सीधा खड़ा ना हो। तो उसके लिए क्या करना, पहले पैर लटका कर बैठे, बैठने के बाद जो बॉडी का फ्लो है ब्लड का उसे चैनलाइज होने दीजिएगा और फिर खड़े हुए। मैंने अपनी मदर खोई है, शी वाज अराउंड 94 years old, शी वाज हाइपोटेंसिव। मेरे बड़े ब्रदर गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी में, पास में खड़े थे। मदर उठे, बेड का सहारा लेके खड़े हुए और धीरे 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 बेड पे ही कोलैप्स हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई पुअर हो गई। जो जब व्यक्ति लेटने के बाद एकदम से खड़ा होता है तो ग्रेविटी के कारण सारे फ्लूइड की टेंडेंसी होती है नीचे की ओर फॉल करने की। तो अगर ब्रेन को कंटिन्यूअसली 30-40 सेकंड के लिए ऑक्सीजन जो कि ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है, ग्लूकोज जो कि ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है, वो नहीं मिला तो इररिकवरेबल डैमेज हो जाता है ब्रेन सेल्स के अंदर। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, इस सिद्धांत को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जो रिसाइट जागरण मंत्रा को वो लोग भी मानते हैं कि 48 सेकंड पर्याप्त होता है बॉडी के अंदर ब्लड या दूसरे शब्दों में कहिएगा फ्लूइड के फ्लो को चैनलाइज करने के लिए और नर्वस सिस्टम का पूरी बॉडी पे पूरे ऑर्गन्स को की फंक्शनिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए इतना समय पर्याप्त होता है। इसलिए जो रिसाइट जागरण मंत्र जो एक अध्यात्म से जोड़ दिया गया है इसको, वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि इस बहाने कम से कम लोग इसको मान लें। ड्रिंक लुकवार्म वाटर, ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए ऐसा करते हैं, खास करके महिलाएं, और थोड़े टाइम बाद में कह भी देते हैं बेबे कुछ नहीं होता है नाल थे करके वेख लिया मैं तो मैंने। सिर्फ वजन को कम करने के लिए ठीक है, उसमें एक ये रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब आप समाज में इस तरह से इस सिद्धांत को रखेंगे कि एक छोटा बच्चा है वो टॉयलेट में जाकर आया, मम्मी कहती है चल पोटी साफ कर, और फिर वो कहती है चल साबुन से हाथ धो, और इतनी देर कहीं भी हाथ से किसी चीज को टच नहीं करना है, और वो बच्चा ऐसे रोबोट बन के खड़ा रहता है। ऐसा क्यों? जो वो मल है, उसकी पोटी है, थोड़े टाइम पहले उसके शरीर में थी और उसके शरीर का एक पार्ट थी वो मल, और उसको हमने स्पर्श कर लिया तो हम उससे घृणा करने लग जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि हार्मफुल है, और वो अगर आप किसी चीज को छुएंगे तो वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इकोलाई, उसमें मेन है दो, वो उस सरफेस पे चिपक जाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसे छुएगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं कि वो हाथ लगाया और वही किसी कोई चीज खा ली उसी हाथ से, तो ओरल रूट से उसके अंदर जाने की संभावना रहती है। ल्यूक वार्म वाटर पीने से क्या होता है? जब स्टमक खाली होता है तो बड़ा क्विकली अब्जॉर्प्शन होता है पानी का, और अगर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होगा कौन से मसल? स्टमक के। तो वो तुरंत ही कुछ तो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ को वो पेरिस्टाल्सिस से उसको आगे की ओर पुश कर देता है। इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होंगी और जो मल आंतड़ियों में पड़ा है वो आगे की ओर पास हो जाता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में मल ज्यादा देर तक पड़ा रहा, और यही कारण है कहा जाता है कि लेट तक मत सो, जो अर्ली टू राइज वाली बात थी उसमें एक बिंदु ये भी है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर कंटेंट का अब्जॉर्प्शन बहुत बहुत स्पीडीली होता है। तो अगर मल वहां पर ज्यादा देर तक पड़ा रहा
तो जो मल के अंदर वाटर कंटेंट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और उस वाटर कंटेंट के रीअब्जॉर्प्शन के साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बायोटॉक्सिन्स जो मल के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो बायोटॉक्सिन्स भी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रीअब्जॉर्ब ना हो जाए। इसलिए जो मल की इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो स्पीड अप हो जाए, उसके लिए सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। और अब पाइल्स के पेशेंट, फिस्टुला के पेशेंट, इंडाइजेशन के पेशेंट, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स, उनको एलोपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह उठकर पेट भर के गुनगुना पानी पिया करें। कुकर के पोट के अंदर क्यों रखे पानी को? हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक प्रॉपर्टी होती है कॉपर के अंदर। स्टैग्नेंट वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं उसके सरफेस पे, या जो वाटर के अंदर ही जिनकी ग्रोथ होती है, अमीबा उनमें से एक है, तो उनकी ग्रोथ चेक हो सके, और जो ऑलरेडी हैं वो अपने लाइफ स्पैन जितना है उनका, जितने आवर्स उसके बाद में खुद ही मर जाएंगे। तो इसलिए कॉपर के जो बर्तन हैं, तांबे के जो बर्तन बने हुए हैं, जो आयुर्वेद में सिद्धांत दे रखा है, अब आधुनिक जो विज्ञान है वो भी इस बात का समर्थन करती है कि जो तांबे के पात्र हैं उनके अंदर पानी को रखा जाए। आप देखिएगा पुराने समय के अंदर मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी रखते थे, घड़े के अंदर, और वो घड़ा हर सीजन में बदल लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो छिद्र हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, और ब्लॉक होने के कारण वहाँ पर फंगस, एल्गी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर रात्रि को अगर बर्तन में पानी रखना है तो तांबे का बर्तन ले और उसे समय समय पर उसको साफ करते रहें। टेक लाइम वाटर एंड हनी, इससे कुछ होता है क्या? ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ होने के नाते जब आप समाज में जाओगे तो आपसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं जी किन्ना शहद लगा, नींबू दा रस किन्ना लवा, किन्ने चर तिकर इनू कंटिन्यूअसली यूज करा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? हनी है दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ द शुगर, और जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो सिंपल शुगर हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सीधे ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन के लिए वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। और लाइम का जो जूस है, नींबू का जो रस है, उसके अंदर जो एसिड है वो उस बर्निंग को स्टिमुलेट करता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज हो जाती है। अब आपका स्टमक खाली है, फूड कुछ बड़ा नहीं हुआ है, और अगर बीएमआर बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गई तो उस टाइम पे क्या बर्न होगा? जो बॉडी के अंदर रिजर्व्स हैं, किस चीज के? एनर्जी के सोर्स क्या है? वो फैट, एडिपोज टिश्यू, वो बर्न होगा। अब कई मैं देखता हूँ युवा मेल फीमेल 10 दिन यूज किया फिर कमर नाप कर देखते हैं, होया तो कुछ भी नहीं। ये जो एक बताना चाहूंगा, जो फैट रिजर्व या एडिपोज टिश्यू बर्न होता है, ये सबसे पहले जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो डिपॉजिट्स हैं वो बर्न होते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो डिपॉजिट्स हैं वो बर्न होते हैं। तो इसलिए तुरंत ही आपके बॉडी कंटूर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और अगर 14 डेज के बाद में आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद में आपको वजन में भी अंतर नजर आने लगेगा। अगर कोई पूछे कि वेट रिडक्शन वाली थ्योरी से इसको जोड़े तो उसको समझाइएगा 14 डेज मिनिमम यूज करना है, जिससे कि ऑर्गन्स के ऊपर थोड़ा जो एक्सेसिव अनडिजायर्ड फैट डिपॉजिट्स है वो थोड़ा बर्न हो। दूसरा, 1800 कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज ना लें। जिंदा रहने के लिए एक हेल्दी युवा को, मेल फीमेल,
मिनिमम 1800 कैलोरी, मेल्स में 2200, फीमेल्स को लगभग 1800 कैलोरीज की जरूरत होती है। उस एनर्जी इनटेक को, कैलोरी इनटेक को मिनिमाइज करें और साथ में कुछ कैलोरीज बर्न भी करें एक्सरसाइज के माध्यम से। तो ये तीनों ही जो अगर एक साथ प्रयोग करें, इन तीनों मेजर्स हम इकट्ठा अडॉप्ट करें तो वेट रिडक्शन जल्दी होगा। लेकिन जो लाइम वाटर और हनी, इसके सिद्धांत को अनडिजायर्ड फैट डिपॉजिट्स जो बॉडी के ऑर्गन्स पर हैं उनको रिमूव करने में ये हेल्पफुल है। ये आधुनिक विज्ञान भी इस चीज को मानती है। एक सिद्धांत ये। अब बात आएगी कि आयुर्वेद में कहीं इसका उल्लेख है क्या? आयुर्वेद में कहीं भी टॉयलेट की इस वेस्टर्न शीट का कहीं भी वर्णन नहीं है। उपड़ू बैठकर घुटनों के जो पोस्चर होती है डिफिकेशन की, एक छोटे बच्चे को इमेजिन करिएगा कैसे डिफिकेट करते हैं वो। घर में मेरे 3 सर्जन हैं, वो हर्निया से बचने के लिए वो बताते हैं, जो एक्सर्व जाते हैं उसमें वही पोस्चरिंग बताते हैं जिसमें सामान्यतः गांव के लोग बैठकर डिफिकेट, या आप इंडियन कमोड पे बैठकर डिफिकेशन के लिए